Vasudev. Okay, कैसा था difficulty level? It was alright. It was harder than the last time, at least. Okay, this was your which attempt? This is my first attempt. Okay. I've solved the paper before. Okay, okay. इंग्लिश से कैसे क्वेश्चन आए थे? कॉम्प्रिहेंशन से क्या टॉपिक आया था? कुछ शेयर कर सकते हैं? मेरे को ऐसे डिटेल I can't tell you, but English was very easy, at least for me. Okay. It was alright, doable. Everything was good. Okay, how many attempts did you make in English? Sorry? How many questions you attempted? About 100. Okay, okay. And in GK? GK I did about 60. Okay. How was GK? It was tough. It was tough. I'll give you that. I was not that prepared either. Okay. So yeah. Okay. And करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन आए थे? आप कुछ शेयर कर सकते हैं? करंट अफेयर से जो अभी चल रहा है उनमें से ही आए थे बेसिकली. Okay. बट थोड़ा वास्ट है. So like anything can come. No matter what you study, उसके aside from that कुछ और भी आ सकता है. Okay. कैसा लगता है क्या कट ऑफ जाएगा इस बार? I have no clue. I can't. I'd rather not comment. Okay. Thank you. Thank आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण सिंह है। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। ओके, कैसा था डिफिकल्टी लेवल? हम अगर जीएस की बात करें तो मॉडरेट टू हाई हो गया, पहले के कंपैरिजन में काफ़ी हाई हो गया और लास्ट अटेम्प्ट में भी इससे कम था, इस अटेम्प्ट में बढ़ गया थोड़ा सा। इंग्लिश इजी थी, इजी से थोड़ा सा लेवल ऊपर कह सकते हैं। मैथ्स का पेपर अभी होगा तो आप दे रहे हैं मैथ्स का पेपर? हाँ जी मैथ्स। ओके, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कोई रेपिटेटिव क्वेश्चंस थे? हाँ, जीएस में मोस्टली करंट अफेयर्स जो थे वो ऐसे थे जो प्रिडिक्टेबल थे और ज्योग्राफी में कुछ नए अटेम्प्ट्स आए और इंग्लिश में ऑलमोस्ट सारा जो पिछली बार हुआ था सेम पैटर्न है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। पर जो लास्ट टाइम था उससे चेंज है काफ़ी, बट जो लास्ट टाइम हुआ था मतलब 2024 का फर्स्ट पेपर जो हुआ था उसके सेम टू सेम सिमिलर है। ओके, आपने कितने अटेम्प्ट करे होंगे? अगर जीएस में बात करूं तो मैंने 65 किए, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है क्योंकि मैं ज़्यादा इस बार प्रिपेयर नहीं कर पाया। ठीक है, मुझे ठीक लगा। एंड इंग्लिश में? इंग्लिश में 95 अटेम्प्ट किए मैंने इस बार। ओके 120। ओके ओके। आप ये बता सकते हैं कि कट ऑफ कैसा जा सकता है इस बार? कट ऑफ का इंग्लिश का मैं इतना बता सकता हूँ कि इंग्लिश का ठीक जाएगा बट जीएस का कम होने वाला है। तो अगर ओटीए की बात करें तो 90 to 95 और अगर आईएमए की बात करें तो 120 तक जा सकता है। वो तो मैथ्स का पेपर डिसाइड करेगा कि अगर मैथ्स का पेपर हार्ड रहा तो फिर ये और कम हो जाएगा और अगर इजी आता है तो 130 तक भी कट ऑफ जा सकता है। ओके, थैंक यू। हाय, आपका नाम क्या है? Hi, I'm Abhishek. ओके, हाउ वाज द पेपर? Paper was good. इंग्लिश में कैसे क्वेश्चंस आए थे? English में I think the trend is changing a little bit. Gradually they are trying to make amends. थोड़ा सा pattern change हुआ है. Okay. Last few questions if you notice that. But it was pretty smooth. If you start from the comprehension part from the backwards, so I think it's quite doable. Within 2 hours you can manage to finish the paper. It's not very lengthy, I'd say, but you have to be very precise about what you're attempting. So you cannot beat around the bush. You have to be precise with that. Vocab is one bit part that you have to be very cautious about because they have quite sophisticated vocabulary per se. So that part, and then the same goes with antonyms and synonyms as well. So you must know each and every word that you are attempting in the paper. आपने कितने अटेम्प्ट करे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में? ओके ओके। एंड हाउ वाज जीके सेक्शन? GK section, I'd say they have more weightage towards economics as the old question papers again. The trend is changing again, I'd say. The science part was pretty easy this time. Science was easier. And other than that, you need to have good grip over economics if you want to score well in GS. History is unpredictable, like usual. You cannot really predict. So, was the paper tough comparison to the previous year or is it fine? see, you have to bifurcate the same. If you compare the science part, it's much simpler. But the history part, all of that is a little bit difficult. Geography again is predictable. The rivers and the clouds, these are a few questions that you always encounter in the question paper. And as far as economics is concerned, it's more contemporary. It's more related to the up-to-date news that is up and coming. So they usually pick up questions from that. So that's as far as the GS is concerned. ऑल द बेस्ट। नाम क्या है? हिमांशु। कैसा था पेपर? पेपर तो अच्छा था। इंग्लिश का कैसा था डिफिकल्टी लेवल? इंग्लिश का तो मॉडरेट था, ज़्यादा ये थोड़ा सा
मतलब हाई लेवल था जीएस। जीके में कैसे क्वेश्चंस आए थे? जीके में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन थे, हिस्ट्री भी थोड़ी ट्रिकी थी, साइंस आसान थी एज कम्पेरेटिवली। करंट अफेयर्स भी मतलब कह सकते हैं नॉर्मली थे, ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हिस्ट्री से थोड़े हैवी क्वेश्चन थे। करंट अफेयर से थे क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन थे ज़्यादातर, पर 2-4 क्वेश्चन तो होते ही हैं। और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कोई टॉपिक आप शेयर कर सकते हैं, किस टॉपिक से आया हो? पैसेज आया था जी, दो पैसेज आए थे, पैसेज तो खैर मैं कर नहीं पाया वो, बाकी तो आसानी था, ग्रामर था थोड़ा बहुत, एरर्स वगैरह, PQRS आए थे 20 नंबर के, वो बहुत आसान थे, आराम से। आप ये बताइए कि कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से इस साल का क्वेश्चन पेपर इजी था? लास्ट वाला जो हुआ था अप्रैल में, उससे ये बड़ा इजी था, वो काफी इजी था, इंग्लिश का और जीएस का जिस हिसाब से हुआ है। मैथ्स का पेपर क्या लगता है कैसे कट ऑफ जाएगी? कट ऑफ अब तक, अभी तक तो 2 पेपर में OT के हिसाब से 110-15 तक चली जानी चाहिए, और देखो क्या लगता है। आप मैथ्स का पेपर भी देंगे? मैथ्स नहीं। ओके, थैंक यू।